Hello everyone, today I am there in front of you with further discussion on the topic mechanical properties of fluids. If you have remember, in last lecture we have discussed many topics and mainly the topics were pressure due to a liquid column, total pressure, absolute pressure, atmospheric pressure, normal atmospheric pressure, and after that in last we saw hydrostatic paradox. Okay, so today I am going to continue further, but before going further, let's have a quick revision of the concepts which we have covered in the last lecture. Students, for your information, the things which we have covered in the second lecture of FM, it is very important. Please don't forget that the study of pressure and the types of pressure and how to calculate that pressure, it is very important. Okay, as far as this chapter is concerned and your further studies on this particular branch fluid mechanics is concerned, that particular part is very important and it is very easy also. So let's solve some questions, some numericals based on that topics. Now today what we are going to cover is numericals based on that topics. Okay, so let's start, but before going to the numerical, it is very important to understand the concepts. The first thing, the first concept which we learn is, if you remember, we drawn a vessel like this and we said that this vessel is filled with liquid and there is a point over here. Now you have to find pressure at this point, correct? Now as far as the pressure at this point is concerned, you already know that this pressure is called as total or absolute pressure, which is equal to atmospheric pressure which is acting on the surface plus pressure exerted by liquid column, that is H rho G. समझ में आ रही है बात? अगर कोई पार्टिकल किसी लिक्विड के अंदर किसी पर्टिकुलर लेवल पे लिक्विड की सरफेस के नीचे किसी H हाइट बिलो, H डेप्थ बिलो है लिक्विड सरफेस से, और आपको फाइंड करना है उस पर टोटल प्रेशर कितना लग रहा है, तो टोटल प्रेशर के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सम करते हैं दो प्रेशर का, एक प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर पहली चीज, दूसरी चीज है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. ये जो लिक्विड है ये भी इस पे प्रेशर डालेगा और ये जो एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर तो ऊपर से है ही, ये दोनों प्रेशर ऐड होता है, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. अब न्यूमेरिकल में आपको कभी पूछेगा कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम फाइंड करो, तो यू हैव टू ओनली फाइंड दिस टर्म प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे. दिस टर्म डिनोट्स प्रेशर ड्यू टू लिक्विड and this term denotes atmospheric pressure. This term denotes atmospheric pressure, and then after that what we have done, we taken this term here. इसी इक्वेशन को हमने इस तरह से मॉडिफाई करके लिखा P माइनस P0. दिस P0 भी टेकन हियर, तो राइट हैंड साइड में क्या बच गया हमारे पास, H रो G, एंड दिस पर्टिकुलर टर्म इसका हमने नाम दिया था गेज प्रेशर. इफ यू रिमेंबर क्या बोला था हमने इसको, गेज प्रेशर. ओके, तो इतना क्लियर है. चलो इसी के बेस पे एग्जांपल सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो सॉल्व एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल का एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं. ओके, सो लेट्स टेक. अब आप लोग क्या करेंगे, देखिए आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक तो प्रिंटेड फॉर्म में है नहीं, बट पीडीएफ में ग्रुप में ऑलरेडी सेंड कर चुका हूं. मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डालूंगा, आप वहाँ से जाके टेक्स्ट बुक का पीडीएफ डाउनलोड करें प्लीज़. गवर्नमेंट ने इतना किया है कि लॉकडाउन में आप घर पे बैठ के स्टडी कर सकते हो. दे हैव प्रोवाइडेड द डाउनलोड लिंक, यू जस्ट गो देयर, डाउनलोड योर टेक्स्ट बुक एंड प्लीज स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम दैट टेक्स्ट बुक्स. सी दिस ऑल थिंग, लॉकडाउन एंड ऑल, it is going to over one day and you have to appear for your boards exam which are going to happen in 2021. तो आप इस पे मत भरोसा करके बैठ जाओ कि अभी लॉकडाउन है, फुर्सत है. नहीं, ये लेजर टाइम है बच्चों आपके पास, उसका यूटिलाइज करो. ठीक है,
टेक्स्ट बुक डाउनलोड करो, वहां से पढ़ना शुरू करो। अब यहाँ पे देखो आपकी टेक्स्ट बुक में एक पहला क्वेश्चन दिया है, द टू डिफरेंट लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2 हैव सेम प्रेशर एट अ पॉइंट, what will be ratio of heights of respective column? This is the question. Solved example. Example number 2.1 your textbook. Example number 2.1 solved example का पहला क्वेश्चन है। Two different liquids of densities ρ1 and ρ2, they are exerting same pressure at a point. Okay. What will be the ratio of their heights of respective column? क्वेश्चन को समझिए पहले। मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ एक इस तरह से कोई कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे इस तरह से ओपनिंग है। ओके, यहाँ पे दो ओपनिंग्स है और यहाँ दोनों के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। हमने क्या किया है, इस पर्टिकुलर थिंग के अंदर भी यहाँ भी फ्लूइड है और यहाँ भी फ्लूइड भरा हुआ है। मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर कंटेनर में H1 तक फ्लूइड भरा हुआ है और इसमें फ्लूइड भरा हुआ है H2 तक। H1 H2 ये हाइट है, height of the liquid column in both of the vessels. Now these two liquids are exerting same pressure at this point. Pressure due to this and pressure due to this are same at this point. Then you have to find H1 upon H2 is what? ठीक है, so let's start with solution. We say solution like this. सॉल्यूशन में लिखेंगे कि सिंस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम इज सेम एट दिस पॉइंट, प्रेशर ड्यू टू बोथ ऑफ दिस लिक्विड इज सेम एट दिस पॉइंट, दैट इज व्हाई यू कैन राइट P1 इज इक्वल टू P2। ठीक है, अच्छा, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का क्या फॉर्मूला है? मैं फॉर्मूला बेटर रहेगा यहां पे लिख देता हूं। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम इज इक्वल टू H rho G। फॉर्मूला याद रखना, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम इज H rho G। सो आई कैन पुट ओवर हियर H rho G, also here H rho G. Now you can see here the suffix is 1, so I am going to put here the suffix 1, rho 1, H2 rho 2. Can you put suffix at G? G is acceleration due to gravity, which is going to be constant. We assume it constant throughout the world, throughout the earth, and its value we assume as 9.81. तो ये तो कांस्टेंट है, तो इस पे सफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप देख सकते हो दोनों तरफ G और G क्या हो गए, कैंसिल हो गए। देन आपको फाइंड करना है H1 by H2। जस्ट टेक H2 over here, you can write H1 by H2 is equal to rho 2 divided by rho 1. This is your answer. बहुत इजी सम था, कुछ भी नहीं था। आपको दो लिक्विड दिया है, दोनों की अलग अलग हाइट है और दोनों लिक्विड एक पॉइंट पे सेम प्रेशर डाल रहे हैं, तो सेम प्रेशर की कंडीशन ये हो गई, ये गिवन कंडीशन है ना, यहां पे लिख देते हैं गिवन कंडीशन। आपकी टेक्स्ट बुक आप खोलोगे तो वहां पर मिलेगा आपको क्वेश्चन पूरा। फिर हमने फॉर्मूला पुट किया, कैंसलेशन किया, हमको आंसर मिल गया। ओके, नाउ लेट अस मूव वेरी क्विकली टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Again, the question is from your textbook and this is example number 2.2. Example number 2.2. Question is a swimmer is swimming in a pool below 6 meter from water surface. Calculate the pressure on the swimmer due to water above. एक स्विमर है जो किसी स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा है और वो वाटर सरफेस से 6 मीटर नीचे है। देन फाइंड द प्रेशर ऑन द स्विमर ड्यू टू लिक्विड। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड याद रखिएगा, प्रेशर ड्यू टू क्या पूछा, लिक्विड। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, H rho G। ओके, आपको क्या गिवन है, आपको डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है 1000 kg पर मीटर क्यूब, G का वैल्यू गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले एक डायग्राम से समझते सिचुएशन को कि लेट से इस तरह से कोई स्विमिंग पूल होगा और ये उसकी वाटर सरफेस है और उस वाटर सरफेस के नीचे यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कोई स्विमर है जो स्विमिंग कर रहा है और वो कितना नीचे है, 6 मीटर। इट इज 6 मीटर बिलो।
You have to find solution. You have to find pressure due to liquid on swimmer is given by pressure will be equal to height, density, acceleration due to gravity. height कितना है 6 मीटर. डेंसिटी ऑफ वाटर आप देखेंगे आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर गिवन है, इट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब. ओके, इट इज गिवन. ग्रेविटी 9.8. करेक्ट. समझ में आया? हमने कुछ नहीं किया, हमने वैल्यूज पुटअप किया. हाइट की वैल्यू हमारे पास थी 6 मीटर. डेंसिटी क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1000. वैसे वाटर की नॉर्मल 1000 होती है, कुछ और देगा तो वो भी लिख सकते हैं. और उसके बाद हमने ग्रेविटी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया. अब इसको सॉल्व करेंगे. ओके, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 58, 588 आ गया. और यहाँ पे आगे 1000 एज इट इज, यहाँ पे डेसिमल लगा दो. इसको करेक्ट फॉर्म में और लिख सकते हैं. ये डेसिमल को यहाँ पे लाओ, 5.88 इंटू 1 2 3 एंड 4 10⁴. ये आपका आंसर आया. बट हियर हमने क्या फाइंड किया? प्रेशर. करेक्ट ना? व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर की यूनिट क्या होती है? द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दिस इज योर आंसर. समझ में आया? देखो, हमें पूछा था प्रेशर ऑन स्विमर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. अगर ये पूछता टोटल प्रेशर तो इसमें हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर देते हैं. बट हमें टोटल प्रेशर नहीं पूछा है, हमें पूछा है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. दैट इज व्हाई वी हैव फाउंड प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम H rho g. 6 को इससे मल्टीप्लाई किया, 6 8 जा 48, 8 4 कैरी, 9 6 जा 54, 4 58 आ गया. एक के बाद डेसिमल लगा लिए 1000 और आगे मल्टीप्लाई कर दिया. दिस मैथमेटिक्स है, सिंपल. ओके, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इसी प्रेशर वाले पार्ट में एक क्वेश्चन है. स्टूडेंट्स, इट इज नॉट सॉल्व्ड एग्जांपल बट इट इज गिवन इन द एक्सरसाइज. आप टेक्स्ट बुक के पीछे देखेंगे तो हमारे टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज है उसके अंदर ये क्वेश्चन गिवन है. ओके, सो इट इज क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, महाराष्ट्र बोर्ड की गवर्नमेंट की जो टेक्स्ट बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 10. ओके, चलिए देखते वो क्वेश्चन क्या कहता है. प्लीज आप लोग अपने साथ में टेक्स्ट बुक रखेंगे एक तरफ ये वीडियो देखते रहेंगे ताकि क्वेश्चन आपके सामने हो और आप उसमें से डेटा लिख सके देख के और आप खुद से सॉल्व कर सके. ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ. फाइंड द प्रेशर 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन इफ प्रेशर ऑन फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज 1 एटमॉस्फेयर. जनरल वर्ड्स में मैं कहूं, समंदर के अंदर 200 मीटर नीचे कितना प्रेशर होगा ये बताना है आपको. अब यहां वो चीज ये मेंशन कर रहा है कि द प्रेशर ऑन द सरफेस, लिक्विड की सरफेस पे जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो है 1 एटमॉस्फेयर. और फिर आपको डेंसिटी ऑफ ओशन गिवन है 1060 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस तरह से. ये सरफेस ऑफ द ओशन है और उसके नीचे डेप्थ में कितनी हाइट तक, अप टू द हाइट ऑफ 200 मीटर कितना प्रेशर होगा ये आपको फाइंड करना है. और बोल रहा है सरफेस पे जो प्रेशर है P0 इट इज 1 एटमॉस्फेयर. कितना है ये? 1 एटमॉस्फेयर. ठीक है, अब देखते हैं ये 1 एटमॉस्फेयर होता कितना है. पहले ये समझ लेते क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा. हमें यहां पे टोटल प्रेशर फाइंड करना है. करेक्ट ना? तो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला तो था प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर या जिसको हम लोग ये भी कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर. क्या फॉर्मूला उसका? P इज इक्वल टू P0 प्लस H rho g. P इज इक्वल टू P0 प्लस H rho g. दिस वॉज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. लिक्विड कॉलम के लिए मैं LC लिख देता हूं. दिस इज द टोटल प्रेशर.
टोटल प्रेशर में क्या करते हैं हम, एच रो जी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर देते हैं, करेक्ट। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आपको ये जो P0 गिवन है गाइस, दिस P0 इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेयर दैट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू SI यूनिट। प्रेशर की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये हमको एटमॉस्फेयर में गिवन है। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं। P0 इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। अब 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है, याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर 1 एटमॉस्फेयर इज 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। अब आप बोलेंगे सर ये 760 mm ऑफ मर्क्यूरी कितना होता है, वो इतना होता है हाइट डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, सेम चीज, मर्क्यूरी की हाइट, मर्क्यूरी की डेंसिटी और जी का वैल्यू तो 9.8 है। अब मर्क्यूरी की हाइट कितनी है, 760 मिलीमीटर, 760 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर से उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से। और उसके बाद हाइट मर्क्यूरी की, ये हाइट हमने लिखा, डेंसिटी कितना होता है, द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड ग्रेविटी का वैल्यू इज 9.8, ग्रेविटी का वैल्यू इज 9.8। समझ में आ गया इतना। अब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेट करके। सो व्हेन यू सॉल्व दिस यू गेट 101,292.8। आपको आंसर क्या मिलेगा, 101,292.8, और यूनिट ऑब्वियसली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, किसको, 1 एटमॉस्फेयर को। अब इसको किलो न्यूटन में अगर लिखना तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको 3 आगे लेके आ जाओ, 101.29 और 28 को आप यू कैन लीव किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बताया था न्यूटन मीटर स्क्वायर इज सेम एज पास्कल, and that is why you can write 101.29 किलो पास्कल। This is the P0। ये क्या मिला हमको, P0, but our aim is to find not P0 but we have to find P। P क्या कैसे मिलेगा, P0 प्लस एच रो जी। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, बट टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू P0 प्लस एच रो जी। P0 की वैल्यू कितनी आई, 101.29 प्लस हाइट कितनी, 200। अच्छा, डेंसिटी आपको वही गिवन है जो उसमें लिखा हुआ है, इट इज गिवन एज 1060। कितना, 1060 गिवन है ना, यस 1060 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज 9.81। तो ये टर्म तो एज इट इज कॉपी होगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 with 1060 with 9.81, so when you multiply all this you will get 2079720। but students this value we got in Newton per meter square। हम लोग ने इस वैल्यू को किस में रखा है, किलो पास्कल में, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो इसको भी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, और इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे न्यूटन से, तो क्या करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे और डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल मैथ्स की चीज़ है। ओके, अब यहाँ डेसिमल आएगा तो जीरो की जरूरत नहीं है। नाउ जस्ट यू हैव टू ऐड अप दिस 2 नंबर्स टू गेट द आंसर। तो ऐड अप करें यहाँ पे, तो हमारे पास है 2079.72 और 101.29, क्या रहा, 10 11 8 1 2। तो हमारे पास आंसर आया 2181.01 किलो पास्कल। 2181.0 किलो पास्कल, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट दिस हाइट। अगर आपको इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखना है तो क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, कॉन्सेंट्रेट, यू कैन राइट 2181 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो यू कैन राइट 21.81, 2 डेसिमल और आगे शिफ्ट कर दो, यहाँ पे पावर 2 से और बढ़ा दो और ये हो जाएगा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट 200 बिलो द सरफेस ऑफ द ओशियन। यानी अगर एक आदमी सरफेस ऑफ द ओशियन के नीचे चले जाए, कितना नीचे,
200 मीटर नीचे, तो उस पर कितना प्रेशर लगेगा, उस पर इतना प्रेशर लगेगा 21.81 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वैसे हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना लगता है, ये इतना लगता है 101.29 किलो पास्कल, दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और हम अगर पानी के अंदर चले जाए तो पानी के अंदर पानी का जो प्रेशर होता है दैट इज 2079.72 किलो पास्कल। आप देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है, दिस इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। समझ में आ गया बात अच्छी तरह? जस्ट पॉज योर स्क्रीन, कॉपी दिस ऑल एंड वी मूव फर्दर with our very important and very interesting topic that is your Pascal's law। उसको भी पढ़ेंगे और उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कॉपी दिस। Now let us understand a very important law and that is Pascal's law। The statement I have written here, just read the statement। Pascal's law क्या बोलता है? Pressure applied at any point of an enclosed fluid at rest is transmitted equally and undiminished to every point of the fluid and also on the walls of the container. Condition is provided the effect of gravity is neglected। सिंपल वर्ड्स में समझो, पास्कल्स लॉ बोलना यह चाहता है कि एक क्लोज्ड कंटेनर है, उसमें फ्लूइड भरा हुआ है और फ्लूइड रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा है, तो उस कंटेनर के किसी भी पॉइंट पे अगर हम प्रेशर डालेंगे दैट प्रेशर विल बी ट्रांसफर्ड इक्वली अनडिमिनिश्ड टू एवरी पार्ट ऑफ द फ्लूइड एंड ऑल्सो ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। एग्जाम्पल लीजिए, यहां मेरे हाथ में एक बॉटल है सैनिटाइजर का, वैसे कॉलिंग का बॉटल है, सैनिटाइजर इसके अंदर भरा हुआ है। तो हमने इस बॉटल के अंदर, मान लो इसमें सैनिटाइजर यहां पे भरा हुआ है, इट इज अ फ्लूइड, इट इज फिल्ड इनसाइड and we assume that it is at rest। now when I apply the pressure here, अगर मैं यहां पे प्रेशर अप्लाई करूंगा तो ये अप्लाई किया हुआ प्रेशर पूरे के पूरे फ्लूइड पे इक्वली ट्रांसफर होगा, फ्लूइड के हर पॉइंट पे भी, और फ्लूइड की ये जो दीवार जिसमें ये फ्लूइड भरा हुआ है, इट इज इनक्लोज्ड इन सम कंटेनर, इट विल ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड इक्वली टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर provided the effect of gravity is neglected। obviously effect of gravity अगर आएगा तो लोअर पोर्शन पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है, लोअर पोर्शन पे ज्यादा उसका वेट फील होगा, उसको हम उसको छोड़ देते हैं, अभी इस पे डिस्कस करते हैं। तो जो प्रेशर आप अप्लाई करोगे एनक्लोज फ्लूइड पे वो इक्वली ट्रांसफर होगा। अब आप बोलेंगे सर ये पढ़ने की क्या जरूरत थी, इक्वली ट्रांसफर होगा, ठीक है होता है तो होने दो। नहीं, इसको यूज करके हमने बहुत काम की चीजें बना ली अपनी रियल लाइफ में, और क्या काम की चीजें बनाई उसको हम समझेंगे आगे। लेकिन पहले इस लॉ को, इस स्टेटमेंट को हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं, और उसी को आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर उन्होंने हेडिंग डाल के एक्सप्लेन किया है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ। ये स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट आप याद रखेंगे। यहां पे हम लोग देखने जा रहे हैं उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, ठीक है। अब वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक कंटेनर कुछ इस तरह से है, इसका एक सेक्शन यहाँ खुला हुआ है, एक सेक्शन उस कंटेनर का यहाँ पे खुला हुआ है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये कंटेनर इस तरह से आगे बढ़ता है और यहाँ हमारे पास एक सेक्शन खुला हुआ है, एंड देन अगेन द सेक्शन इज ओपन फ्रॉम हियर। मैं समझाता हूं क्या है ये। यहां पे हमने एक पिस्टन रखा हुआ है प्रेस करने के लिए, ओके। और ये जो हमारी ओपनिंग है, इस ओपनिंग में यहां भी हमने एक पिस्टन रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जो ओपनिंग है हमारे पास, इस पर्टिकुलर ओपनिंग में भी हमने रखा हुआ है एक पिस्टन, और ये जो ओपनिंग है हमारे पास, इस ओपनिंग के अंदर भी एक पिस्टन है। पिस्टन क्या होता है? पिस्टन एक्चुअली एक सर्कुलर, एक डिस्क लाइक ऑब्जेक्ट होता है जो ऊपर से ऐसा एंक्लोज करके रखता है, और आपको अगर प्रेशर अप्लाई करना है किसी भी वेसल में, मान लो ये सिलेंड्रिकल है, आपको इसके अंदर प्रेशर अप्लाई करना है, तो पिस्टन को रख के आप उसको प्रेस कर सकते हो, प्रेशर अप्लाई कर सकते हो, बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज पिस्टन। हमने क्या किया, अब ये हमारा एंक्लोज्ड वेसल बन गया, करेक्ट ना। ये एक ओपनिंग, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ठीक है।
ये हमारा एक एंक्लोज सरफेस बन गया। अब इसके अंदर हम लोगों ने भर दिया किसको? फ्लूइड को। इसके अंदर हमारा भरा हुआ है कोई भी फ्लूइड XYZ। अब हमने यहां पे इस पर्टिकुलर एरिया पे हमने अप्लाई किया फोर्स F। कितना अप्लाई किया? फोर्स F। और मान लेते हैं ये फोर्स 1, ये हमारा फोर्स 1 था। एंड कंसिडर द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस पिस्टन इज A1, करेक्ट। ऑल्सो अच्छा यहां देखिए, जब आपने इस F1 पर A1 फोर्स अप्लाई किया तो प्रेशर कितना लगा? व्हाट विल बी प्रेशर? यू कैन इजीली टेल दैट प्रेशर P1 विल बी इक्वल टू F1 बाय A1। या आप इजीली बता सकते हो ना, P1 इज इक्वल टू F1 बाय A1, ठीक है। अब जब आप यहां प्रेशर अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली ये फ्लूइड यहां से कॉम्प्रेस होगा। जब कॉम्प्रेस होगा तो हर तरफ से बाहर जाना चाहेगा, वो यहां से भी बाहर निकलेगा, यहां से भी बाहर निकलेगा, यहां से भी बाहर निकलेगा, करेक्ट ना। जब ये फ्लूइड यहां से इस तरह बाहर जाना चाहेगा तो ये पिस्टन थोड़े थोड़े से अपवर्ड मूव होंगे, ये ऊपर जाएगा, ये भी थोड़ा ऊपर जाएगा, ये भी थोड़ा ऊपर जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना था? आई वॉन्टेड टू कीप दिस पिस्टन एट इट्स पोजिशन। ये पिस्टन, ये पिस्टन, ये पिस्टन, मैं चाहता हूं कि ये अपनी पोजीशन से हिले नहीं, अपनी पोजीशन पे ही रहे। उसको अपनी पोजीशन पे रखने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये देखा कि इस पर्टिकुलर पिस्टन को पर हमको जो प्रेशर अप्लाई करना पड़ा दैट वाज F1/2। बेटर ये रहेगा बच्चों, इसको F ले लो और उसको A ले लो, ठीक है। तो हमने देखा कि इस पर फोर्स कितना लगाना पड़ा? F/2, यानी जितना यहां लग रहा था उसका आधा। और इस पिस्टन का एरिया था A/2, जितना एरिया इसका था उसका आधा ये एरिया था। फिर हम लोगों ने देखा कि इस पर्टिकुलर पिस्टन को उसकी जगह पे रखने के लिए हमें जो फोर्स अप्लाई करना पड़ा दैट फोर्स वाज 2F एंड दिस एरिया वाज ट्वाइस ऑफ A। यहां जितना एरिया था उसका डबल एरिया, यहां जितना फोर्स हमने अप्लाई किया उसका डबल यहां लगाना पड़ा उसको अपनी जगह पे रखने के लिए। और फिर यहां फाइनली ये एरिया जो कि 3A था, इस एरिया के 3 टाइम्स था, इसको उसकी जगह पे रखने के लिए हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ा 3F। अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या बात समझ आई वो समझिए आप। हम सब सेक्शन को नाम दे देते हैं। मान लेते हैं दिस इज सेक्शन नंबर 1, दिस इज सेक्शन नंबर 2, दिस इज सेक्शन नंबर 3 एंड दिस इज गोइंग टू बी सेक्शन 4। लेट अस फाइंड प्रेशर एट ईच सेक्शन। पहले सेक्शन पे प्रेशर देखिए आप, फर्स्ट सेक्शन जो है वहां पर प्रेशर कितना है? प्रेशर एट फर्स्ट सेक्शन इज F/A, वेरी सिंपल। ओके, प्रेशर एट सेकंड सेक्शन, सेकंड ये है, फोर्स कितना है? F/2। एरिया कितना है? A/2। आप देख सकते हो हम 2/2 को कैंसिल कर सकते हैं और फाइनली हमारे पास जो बचेगा वो है F/A। उसके बाद प्रेशर एट थर्ड सेक्शन, लेट्स चेक। फोर्स कितना? 2F, एरिया कितना? 2A, तो वी कैन राइट 2F/2A, 2 से 2 कैंसिल, वी गेट इज F/A। प्रेशर एट फोर्थ सेक्शन, फोर्थ में हमारे पास फोर्स 3F, एरिया 2A, वी कैन राइट इट एज 3F/3A एंड व्हाट वी गेट इज 3 कैंसिल, वी गेट इज F/A। अब यहां से आपको क्या बात समझ में आई? फर्स्ट सेक्शन का प्रेशर भी F/A, सेकंड वाले का भी F/A, थर्ड वाले का भी F/A, फोर्थ वाले का भी F/A। कैन आई से द प्रेशर एट 1 is pressure at 2 is same as pressure at 3 is same as pressure at 4। इससे क्या बात समझ में आई? The pressure applied at one point of the fluid is equally and undiminished transferred to each and every point of the fluid also on the wall of the container. This is what Pascal's law says and this is the experimental proof of the Pascal's law। किसी भी पॉइंट पर एनक्लोज्ड वेसल में जिसमें फ्लूइड भरा हो, रेस्ट पे हो, अगर एक पॉइंट पे प्रेशर डालोगे वो सब जगह इक्वल और अनडिमिनिश्ड ट्रांसफर होगा। ये हमने स्टेटमेंट देखा और इसको एक्सपेरिमेंटली समझा। अब आइए इसका रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। रियल लाइफ में हम इसका यूज कहां करते हैं? क्या आप लोग अपनी गाड़ी बनवाने के लिए कभी गैरेज में गए हो? या गैरेज में आपने देखा होगा क्या ये जो कार्स होती है
इसको हम लोग लिफ्ट पे चढ़ाते हैं, जैक बोलते हैं जिसको हम लोग। आप गैरेज में जाओ और वहाँ उसको बोलो भाई जैक दिखाना ज़रा, हाइड्रोलिक जैक, तो आपको जैक दिखाएगा। उसको रैम्प पे भी बोलते हैं, उसको लिफ्ट भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है। वो बेसिकली होता है क्या, यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा सिलेंडर होता है, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक एक दूसरा सिलेंडर यहाँ होगा, यहाँ पे एक पिस्टन है और यहाँ पे हमारे पास एक पिस्टन है, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर क्या भरा हुआ है हमारे पास, फ्लूइड। द फ्लूइड इज फिल्ड इनसाइड हियर। यह हमारे पास फ्लूइड है। हम क्या करते हैं, हम हमारी कार को इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। योर कार रेस्ट्स हियर। यहां पे आपकी कार रहती है, आपने अपनी गाड़ी को यहां पे चढ़ा दिया। अब ये गाड़ी का कुछ मास होगा, लेट्स से मास इज कैपिटल M। अब इसको हमें किसी सर्टन हाइट पे ले जाना है। देखो गाड़ी को हाइट पे क्यों ले जाता है, बिकॉज गाड़ी के नीचे बहुत सारी चीजें होती है जिसका रिपेयरिंग करना होता है। नीचे अगर आप देखेंगे रियर व्हील ड्राइव में, तो वहां प्रोपेलर शाफ्ट होगा, उसकी माउंटिंग्स होती है, फिर वहां मैकेनिक बोलते हैं नट बोल्ट्स करना है, फिर जो टायर होते हैं उसकी बेयरिंग चेक करना है। अब ये सारा ऊपर से तो नहीं कर सकते आप, तो उसको नीचे से चेक करने के लिए, नीचे से काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, गाड़ी को थोड़ा सा ऊपर चढ़ाना पड़ता है, ठीक है। फिर उसको ऊपर लेके नीचे से टेक्नीशियन उस पर काम करता है। अब इतनी बड़ी गाड़ी जिसका मास अप्रोक्सीमेटली 1000 या 1200 किलोग्राम, इतने बड़े मास को ऊपर चढ़ाना इजी तो नहीं है, तो इसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। अब देखो करते क्या है, हम लोग यहाँ पे जितना प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं खुद से, उतना प्रेशर यहाँ अप्लाई करता है और हम देखते हैं कि गाड़ी यहाँ पे ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ रही है। कैसे, ध्यान से सुनिए मेरी बात। मान लो आपने यहां पे प्रेशर अप्लाई किया P1 और यहां पे आपके अप्लाई करने की वजह से यहां पे प्रेशर लगेगा ऊपर P2, करेक्ट ना, बिकॉज यहां पे आपका अप्लाई किया हुआ प्रेशर यहां जाएगा। अरे अगर आप यहां प्रेशर अप्लाई करोगे, दैट प्रेशर इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द फ्लूइड, और यहां भी वही प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा, करेक्ट ना। सो कैन आई से सेम प्रेशर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मींस P1 is equal to P2 according to Pascal's law. Pressure applied here will be same as pressure exerted by this particular part P2. अच्छा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। यहां पे इसका फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, यहां पे लगने वाला फोर्स डिवाइड बाय यहां वाला एरिया, यहां पे लगने वाला फोर्स डिवाइड बाय यहां वाला एरिया। इतना समझे आप। मुझे ये फाइंड करना है कि ये गाड़ी जो अपने मास की वजह से F2 फोर्स लगा रही है, कितना, इसका मास कितना है M, और इसके वजह से F2 फोर्स यहां लग रहा है। मुझे वो F2 फोर्स फाइंड करना है कि इस पर्टिकुलर कार जो कि F2 फोर्स से अपना वेट नीचे एग्जर्ट करे, उसको उठाने के लिए कितना ताकत लगेगा। सो लेट अस फाइंड F2, ठीक है। F2 फाइंड करते हैं इस इक्वेशन से। ये A2 को यहां ले जाओ तो वी कैन फाइंड F2 इज इक्वल टू A2 बाई A1 और साथ में कौन आ जाएगा, F1। जस्ट लुक एट दिस इक्वेशन गाइस, हैव अ कॉन्सेंट्रेट हियर, सुनेंगे ध्यान से। द फॉर्मूला फॉर F2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 इंटू F1। A2 इज दिस एरिया, A1 इज दिस एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। मुझे अगर F2 बढ़ाना है, F2 मतलब यहां से इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां से नीचे से अप्लाई किया जाने वाला फोर्स F2 अगर मुझे बढ़ाना है मान लो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू इंक्रीज A2 एंड आई हैव टू रिड्यूस A1। देखो ये F2 A2 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये F2 A1 से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर A2 को बढ़ाऊंगा तो F2 बढ़ेगा और अगर A1 को कम करूंगा तो F2 बढ़ेगा। तो व्हाट आई मीन टू से, जितना मैं A2 को ज्यादा रखूं, जितना इस एरिया को ज्यादा रखूंगा, उतना ही यहां पे लगने वाला फोर्स बढ़ेगा, और जितना इस एरिया को मैं कम कर दूंगा, यहां पे लगने वाला फोर्स बढ़ेगा। सो अगर यहां पे लगने वाले फोर्स को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा,
keep this area as big as possible and keep this area as small as possible and apply your force F1 here and this particular object will be lifting easily. क्या आपको बात समझ में आ गई? दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक लिफ्ट. इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट. अच्छा, और एग्जांपल देखते हैं इसकी. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपने सुना होगा हाइड्रोलिक ब्रेक्स. क्या सुना आपने? हाइड्रोलिक ब्रेक्स. चलो उसका थोड़ा सा प्रिंसिपल समझते हैं. ठीक है, हेडिंग डालेंगे hydraulic brakes. Now just see here, I have made a simple diagram for hydraulic brakes. ठीक है, ये बहुत सिंपल, बहुत जनरलाइज फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करने के लिए है. वरना अगर आप रियलिटी में अगर इसका 2D डायग्राम देखेंगे, लाइन डायग्राम जो एक्चुअली 2D में बना हुआ है एक्चुअली ऑर्थोग्राफिक में, तो वो बहुत डिफिकल्ट डायग्राम होता है एक्चुअली. इसमें हम सारी चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन ये मुझे आपको समझाना है इसलिए मैंने बहुत सिंपल डायग्राम बनाया हुआ है. मान लो ये आपका मेन मास्टर सिलेंडर. इसमें एक मास्टर सिलेंडर होता है. ये हमारे पास है मास्टर सिलेंडर, ये वाला. और ये चारों व्हील पे यहाँ 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 और यहाँ, ये चारों व्हील पे हमारे पास लगा हुआ है स्लेव सिलेंडर. इसको हम लोग बोलते हैं स्लेव सिलेंडर और इसको व्हील सिलेंडर भी कहते हैं क्योंकि ये व्हील के पास लगा होता है. अब होता है क्या, जब ब्रेक हमें दबाना होता है, ब्रेक अप्लाई करना होता है, तो हम लोग यहाँ प्रेस करते हैं इधर. जब आप प्रेस करोगे तो ये जो फ्लूइड यहाँ पे है, ये फ्लूइड प्रेस होगा और प्रेस होने के बाद ये फ्लूइड, ये चारों जो पाइपलाइन आपको दिख रही है फ्लूइड की लाइन, ये चारों लाइंस में जाएगा. यहाँ से यहाँ भी, यहाँ से यहाँ भी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ. अब हमने अभी पास्कल्स लॉ वाला फॉर्मूला देखा था. अगर हम इनपुट एरिया जितना कम रखें और आउटपुट एरिया जितना बढ़ा दें तो फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा. हमने देखा था योर F2 इज इक्वल टू A2 बाई A1 इंटू F1. करेक्ट ना? आउटपुट एरिया को बढ़ाओ, इनपुट एरिया कम करो. तो देखो, व्हील सिलेंडर जो होता है उसका पिस्टन बड़ा होता है और मास्टर सिलेंडर का पिस्टन छोटा होता है. जब यहां से थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करते हो तो इन व्हील्स पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई होता है. ठीक है, अब व्हील पे कैसे फोर्स अप्लाई होता है? ये यहाँ पे ये सिलेंडर है, यहाँ पे पिस्टन है, ये पिस्टन बाहर ब्रेक पैड से कनेक्टेड है. कैसी होती है असेंबली? लाइक दिस. बीच में हमारे पास एक व्हील होती है. लेट मी गेट समथिंग. जस्ट कंसीडर दिस एज अ व्हील. ये बीच में हमारे पास एक व्हील है. आई एम हैविंग CD ओवर हियर. सो यहाँ पे हमारे पास कैलिपर लगा होता है ऐसे, और यहाँ इस जगह पे एट दिस प्लेस we are having fluid and here at this place we are having piston. So whenever you press the brake, whenever you press this, the fluid goes to all cylinder. Also it goes here. When it comes here, it presses this piston. और जब इस पिस्टन को ये ब्रेक, ये जो फ्लूइड है दबाता है, तो ये पिस्टन ऐसा आगे मूव होता है और आगे मूव होकर व्हील को इस तरह से पकड़ लेता है. ये व्हील को ऐसे पकड़ लेता है. तो जब ये व्हील को ऐसा पकड़ेगा तो व्हील तो मूव हो रहा है ना, तो व्हील पे क्या अप्लाई हो जाएगा? ब्रेक. तो ड्राइवर का एफर्ट कम करने के लिए यहां पे आप स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओगे, बिग अमाउंट ऑफ ब्रेकिंग एक्शन विल बी अप्लाइड एट द टायर्स. दिस इज व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ इन हाइड्रोलिक ब्रेक्स. तो हमने एक एप्लीकेशन अभी थोड़ी देर पहले देखा. वो क्या था हमारे पास? दैट वाज ऑल अबाउट द हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड दिस एप्लीकेशन इज ऑल अबाउट पास्कल्स लॉ इन हाइड्रोलिक ब्रेक्स. सो डिड यू गॉट दिस? ओके, लेट अस मूव एंड solve some questions, some numericals based on this. Now here I have written some data of question number 11 of your government textbook. आपकी टेक्स्ट का जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 11. दिस डेटा इज रिलेटेड टू अ हाइड्रोलिक लिफ्ट. एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है, उसका इनपुट एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आउटपुट एरिया 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर है. फोर्स अप्लाइड एट इनपुट इज 25 न्यूटन. व्हाट विल बी द फोर्स अप्लाइड ऑन आउटपुट? दैट मीन्स जो डायग्राम मैंने अभी बनाया था उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है. मान लेते हैं ये आपका इनपुट एरिया है, यहाँ पे इनपुट एरिया A2 और यहाँ पे आपका आउटपुट एरिया है विच वी कॉल्ड एज A2. यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इस पे दैट विल बी लेट अस से F2 और यहाँ हम जो फोर्स लगा रहे हैं हमारा एफर्ट दैट इज F1. वी हैव टू फाइंड F2.
अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, हमने अभी पढ़ा, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर दोनों तरफ सेम होगा, यहां जितना प्रेशर वही प्रेशर इतना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। हमें F2 फाइंड करना है, in question we have to find F2, so F2 will be equal to what from this equation, it will be equal to A2 by A1 into F1. Now just put up the values. What is the A2 given? 1500 centimeter. This is A2. What is A1 given? 30 centimeter. And you have to multiply this value by F1 force. F1 force is 25 Newton. इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, 3 1 जा 3, 5 जा 15, देन ओके, यहाँ पे क्या बचा ऊपर हमारे पास 50 और यहाँ हमारे पास क्या बचा 25, 50 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 जा 125 और 0 एज इट इज। ये हमने क्या फाइंड किया, फोर्स ऑन एरिया A2 विच वी कॉल्ड इट एज F2 और यूनिट लिखेंगे इसकी न्यूटन यहाँ पे। अब आप देखो, आउटपुट एरिया 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनपुट एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैन यू सी, इनपुट एरिया इज 30, आउटपुट इज 1500। हमने इनपुट पे सिर्फ 25 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और आउटपुट पे कितना फोर्स लग गया 1250 न्यूटन। इन इनपुट वी अप्लाइड 25 न्यूटन and what we got is 1250 Newton. How this became possible? Because pressure which was transmitted was equal. Pressure was equally transmitted. So once we make this area more, that is 1500, and we make this area less, sorry, this will be A1, we make this area less 30 centimeter square, and what we got is 1250 Newton output force from this hydraulic lift. So I hope you understood this numerical. You understood all the numericals which I have solved in today's lecture. If you are having any doubt in numerical and if you want the numericals in another way, you can just comment in the box. By the way, आपका आज का होमवर्क रहेगा, just take homework in your textbook, example number 2.2, example number 2.2 आपकी टेक्स्ट बुक में से, उसको आपको सॉल्व करना है। एक्चुअली दैट इज सॉल्व एग्जाम्पल, जस्ट आपको समझना है, इट इज सॉल्व एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2.2 आपको बस वहां से देख के समझना है, ठीक है। बाकी जहां तक बात है आपकी टेक्स्ट बुक में, देयर इज वन MCQ ओवर देयर, फर्स्ट MCQ, इसको मैं रब कर देता हूं यहाँ पे। MCQ number 1, MCQ number 1, it is also based on this Pascal's law. It is also very simple, you can just solve. I think it is based on pressure or Pascal's law, but it has the question is from the topic which we have already covered. These two questions will be your homework. Just try these questions. If you are not getting, I am here to help you. ठीक है, आपका आंसर जो भी आएगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे, नहीं आएगा तो भी कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर आंसर नहीं आ रहा है, हम लोग यहाँ पे उसको मिल के सॉल्व करेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के लेक्चर में जहाँ तक कंप्लीट हुआ वहाँ तक पूरा का पूरा आप लेक्चर देखिए, जहाँ भी डाउट आ रहा है उसको मार्क करके आप मुझे भेजिए। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग आगे की स्टडी करेंगे और हम लोग देखेंगे प्रेशर को नापने के डिवाइसेस कौन कौन से है। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।